دوسرا آپ نے میرے خلاف نیب کی نوٹسز کی بات کی تو میرے خیال ہے سنا تو میں نے بھی یہی تھا, پھر اچانک سنا کہ وہ دھند میں وہ نوٹس بھی گم ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کا آپ کے پاس یہی علاج ہے. آپ کے اوپر وہ جو بھی بات کرتی ہے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کی جو کسی نہ عوام کی جو ایک اسٹرگل لے کر ہم ساتھ چل رہے ہیں اس کا توڑ آپ کے پاس نہیں ہے. یا آپ کے پاس دھند میں بندے اغوا کرنا آپ کا شیوا ہے, یا دھاندلی کرنا آپ کا شیوا ہے, یا یہ کہ جس کو آپ ان جھکا نہیں سکتے اس کو آپ اغوا کر کے جیل میں ڈال دیں, یہ بھی اغوا ہے. اور عمران خان صاحب ایک اب اسٹیبلشڈ اغوا کار ہیں, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے کہ میں بالکل نہیں ڈرتی. پہلے بھی انہوں نے مجھے ناحق 2 دفعہ اندر رکھا. یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اندر رکھنا جو ہے نا, کسی کو جیل میں بند کرنا جھوٹے مقدمات میں, وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. آپ اس سے نہ صرف یہ کہ کسی کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے, بلکہ جب آپ ناحق اس میں جیل میں ہوتے ہیں تو جو ڈر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور آپ پہلے سے بھی زیادہ, کم از کم میں پہلے سے بھی زیادہ توانا ہو کر اور اپنا جذبے کو تقویت دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 2 مراحل میں سے بھی گزارا. تو اگر آپ کے پاس یہی ایک دنیا کو دیکھنے دیں کہ آپ اتنا ڈر رہے ہیں, ہر جگہ آپ فیلئر ہیں, آپ گورننس میں فیلئر ہیں, آپ فارن ریلیشنز میں فیلئر ہیں, آپ اپنی گورننس میں فیلئر ہیں, آپ قیمتیں کنٹرول کرنے میں فیلئر ہیں, آپ عوام کو ریلیف دینے میں فیلئر ہیں, بلکہ آپ مجرم ہیں ان کے. تو اگر یہ آپ نے اپنے کفن میں آخری کیل ٹھونکنا ہے تو ضرور کریں. میڈم یہ بتائیے گا کہ ڈسکا الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ پورے حلقے میں الیکشن ہونا چاہیے. اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ صرف 23 حلقوں میں ہوگا, اسی صورت میں پھر نون لیگ کا کیا ڈیسیجن ہوگا, کیا بائیکاٹ کریں گے یا کیا؟ نہیں, یہ ذرا ازمپشن کی بات ہے, فیصلہ آ جانے دیں. وہ ابھی مقدمہ سن رہے ہیں. ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں جو ہم نے پیش کیے ہیں. الیکشن کمیشن کی اپنی فائنڈنگ بھی یہی ہے, کیونکہ ان کی پریس ریلیز بھی یہی کہہ رہی ہے. تو پہلے فیصلہ آنے دیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں چیف الیکشن کمشنر سے کہ یہ آپ کے پاس موقع ہے. آپ کا جو ای سی پی ہے ایک قومی ادارہ ہے, اور ووٹ کی عزت کروانا, ووٹ کی حرمت کی حفاظت کرنا, پاکستان کے عوام کے حق رائے دہی کو یقینی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور 22 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ آپ کے پاس شاید پہلا اور آخری موقع ہے کہ آپ ایک اصولی سٹینڈ لے کر انصاف کریں اور پاکستان کے اور ڈسکا کے عوام کو انصاف دیں, اور آئندہ کے لیے جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دے کر آئندہ کے لیے ایسے واقعات کو روکیں. مسلم لیگ نون کے حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں, کتنا اسٹرینتھن آپ کو کرے گی اس وقت کیا حمزہ کی واپسی کی ضمانت کو آپ مسلم لیگ نون کو کے حوالے سے کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اسی وقت صرف ایک ہی جو ہے وہ شریف خاندان کی جو وہ میدان میں ہے, اب ان کا آنا آپ کو کتنا اسٹرینتھن کرے گا؟ بہت زیادہ, کیونکہ وہ بہت محنتی ہے, اپنے کام کو, سیاسی کاموں کو اچھے سے جانتا ہے, اور اس کی کمی مجھے ہر موقع پر محسوس ہوئی, پارٹی کو محسوس ہوئی. اب وہ انشاءاللہ تعالی آئے تو 1 اور 1 11 ہوتے ہیں, اور ہم دونوں مل کر انشاءاللہ تعالی یہ میاں صاحب جو جد و جہد شروع کی ہے پاکستان کے عوام کی خاطر, اس کو آگے لے کے جائیں گے. یہ بتائیے گا سپریم کورٹ میں چل رہا صدارتی کا متبادل امیدوار کون ہے نون لیگ؟ میرا خیال ہے کہ اناؤنس کر دیا آج ہم نے, ابھی نہیں کیا, ابھی آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی. میاں صاحب کی یہ کہ مشاہد اللہ صاحب ہمارے بہت ہی شاندار ایک سویلین سپریمیسی پہ کھڑے ہونے والے جمہوریت کے علمبردار تھے, پارٹی کے وفادار تھے. میاں صاحب کے ایک بہت بااعتماد ساتھی تھے, ایک بہت جمہوریت کی بہت توانا آواز تھے. ان کی قربانیاں ہیں. مجھے ان کی ملاقات میرے ساتھ ہوئی تھی جب مشرف نے کو کیا تھا, اور میاں صاحب جو ہے وہ کراچی میں اریسٹڈ تھے, تو وہاں پر ہی میں نے ان کو تب دیکھا, اور وہاں پر ان سے میری ملاقات ہوئی. 1999 کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں. تب سے انہوں نے ان کی قربانیوں کا, ان کی جد و جہد کا سلسلہ جاری ہے. تو ایسے انسان کو یاد رکھنا اور ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے جس کو اپنا کورنگ کینڈیڈیٹ بنایا تھا وہ ان کا بیٹا ہے عفنان, ڈاکٹر عفنان, ایک PhD ہیں اور کمال کا لڑکا ہے, بہت لرنڈ اور
ऑब्वियसली क्योंकि जमात से उसका ताल्लुक है, अपने वालिद के साथ क्लोज रहा है, तो वो असूल उसने भी अपनाए हैं. तो मियाँ साहब की ये एक ख्वाहिश थी कि उनको रिवॉर्ड किया जाए. अब हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हो रहा है, देखें क्या फैसला आता है. लिस्ट सामने आ जाएगी. बिलावल भुट्टो भी पहुंच रहे हैं, मुलाकात आपकी होगी और पहुंच गए मतलब, और गिलानी साहब के बिलावल भुट्टो मेरे पास इंशाल्लाह ताला कल करें, और ये उन्होंने कहा था तो मैंने उनको कहा आप जरूर तशरीफ लाएं, बल्कि मेरे साथ लंच करें. तो कल वो आएंगे इंशाल्लाह ताला, उनसे मिलके बात. सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है सदारती रेफरेंस, आप क्या देख रही हैं कि उसके अंदर फैसला अभी तक जो नजर आ रहा है, जितनी भी हम उसकी ऑब्जर्वेशन सुन रहे हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ वो जाता नजर आ रहा है. अगर यही फैसला आ जाता है, मुस्लिम लीग नून उसे तस्लीम करेगी या क्या देख रहे हैं? मैं इसके बारे में मेरा वही असूली मौक़िफ़ है जो पहले दिन था. मैं ये समझती हूँ कि ये जो इलेक्शन के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो फ़ोन करवा के लोगों को, MPAs को, MNAs को, सेनेटर्स को दबाव में लाया जाता है, ये खुफिया वोटिंग जिनको सूट करती है उनको करती है. लेकिन मेरा असूली मौक़िफ़ ये है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो, क्योंकि ये आईनी शिक है, इसके अंदर कोई तरमीम अगर लानी है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन वो ये जाली हुकूमत नहीं कर सकती. हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इस कानून को तब्दील भी करेंगे. अल्लाह ताला करे कि कोई बेहतर जमहूरी हुकूमत आए, उसके साथ बैठ के उसके साथ पूरा तावन भी करेंगे. मुस्लिम लीग नून की भी अगर हुकूमत आइंदा आती है इंशाअल्लाह, तो उसमें भी हम ये तरमीम ज़रूर करेंगे. लेकिन ये तरमीम करना सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हक है, वही ये तरमीम करेंगे. ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं. और मैं सुप्रीम कोर्ट को पहले भी ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि ये एक सियासी मसला है, आप इसमें पार्टी ना बने. और ये लोग तो चाहते हैं कि पहले हमें फ़ोन करवाए गए कि प्लीज़ बैठ के इमरान खान के साथ पार्लियामेंट से इस पे लेजिस्लेशन करें. हमने इनकार कर दिया. हमने कहा कि हम इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं देंगे. तो फिर वो ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए. तो मैं सुप्रीम कोर्ट को आज भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इसमें पार्टी ना बने, क्योंकि ये परसेप्शन उसका यही आएगा कि इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, तहरीक इंसाफ की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, जब इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है, जब हर तरफ से उसको नाकामी और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, जब वो ग्राउंड से, बैटल फील्ड से रिट्रीट कर रहा है और हर जगह वो फेलियर है और उसके अरकान भाग रहे हैं, उसके MNAs भाग रहे हैं, उसके MPAs भाग रहे हैं, और एक बगावत सी हो चुकी है उनके रैंक्स के अंदर. तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देता है तो पाकिस्तान की आवाम उसको एक बायस्ड फैसला समझेगी. मैं दोबारा से कह दूं कि ये 2 साल 3 साल पहले जब इनका सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, तो इमरान खान को तब शो ऑफ हैंड्स नहीं याद आया, तब उनको ओपन बैलेट याद नहीं आया, तब उनको ट्रांसपेरेंसी याद नहीं आई, तब उनको ये याद नहीं आया कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तब उनको ये नहीं याद आया कि खरीदे जाते हैं और फरोख्त किए जाते हैं अराकीन. और ये भी लोगों को बताएं कि ना सिर्फ आपने अराकीन को उस वक्त खरीदो फरोख्त की, बल्कि आपने एजेंसीज को इस्तेमाल किया, उनसे फोन करवाए और दबाव डलवाकर, फाइलें खुलवाकर ऑपोजिशन के अरकान की आपने उसको खरीदा. उसको भी खरीदना कहते हैं. तो आज अचानक आपको, जब आपके पैरों के नीचे जमीन हिल रही है, खिसक रही है, तो आज आपको याद आ गया कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए. आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अगर आप करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को इस गंदे सियासी खेल में घसीटेंगे, तो हम आपको एक्सपोज करेंगे. और ये काम आप बिल्कुल सर झुकाकर, जिस तरह पोलिंग स्टेशन के अचानक वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मुंह लटकाकर और सर झुकाकर गैर नजर मिलाए हुए RO ऑफिस में अचानक सुबह वारिद होकर चले जाते हैं, ऐसे हम आपको आंखें बचा के, नजरें चुरा के गुजरने नहीं देंगे. हम आपको पूरा एक्सपोज करेंगे. है डस्का के इलेक्शन में और सेनेट के इलेक्शन में गैर जानिबदार है एस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफिकली. मैं ये समझती हूँ कि अगर वो एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं है तो उनको गैर जानिबदार होना चाहिए. और इलेक्शंस लड़ना, पॉलिटिकल जो मैदान है, पॉलिटिकल जोड़ तोड़ है, सियासी हिकमत अमली है, उसमें न सिर्फ ये कि दखल अंदाजी करना, बल्कि एक पार्टी को सपोर्ट करना, एक आम खान को
वोट चोर को सपोर्ट करना जो खुलकर अवाम के सामने आ चुका है, जिसने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है, एक ऐसी हुकूमत को दवाम देने की कोशिश करना, उसके पीछे खड़ा होना, उसके लिए कोई एफर्ट्स करना, अगर वो ये कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अवाम के सामने आके खड़े होने वाली बात है जो कि किसी भी तरह अदारे के लिए अच्छी नहीं है। तलब किया गया है जी मुस्लिम लीग नून का जी बिल्कुल, जनरल काउंसिल का इजलास है। कि आपके जो अरकान हैं वो इंटैक्ट हैं या कोई ऐसा कोई फियर आप नहीं, माशाल्लाह जिनके इंटैक्ट नहीं है, मुसीबत उनको पड़ी हुई है। और मैं आपको एक दफा फिर से ये बता दूं कि जब अवाम, स्पेशली पीटीआई, जो भानुमती का कुंभा जोड़ा गया था ना इधर उधर से लोग उठा के, उनकी जाहिर है उनके पीछे जो ताकतें थी, उन्होंने ये पीटीआई उनको इसी तरह बनवाई, तो उनकी पीटीआई से कोई हमदर्दी नहीं है। जब उनको ये नजर आ रहा है कि इतनी धांधली के बावजूद अगर मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह जीत गई है तो पीटीआई का कोई फ्यूचर नहीं है। और मैं दोबारा कहती हूँ कि नौशहरा में हमने माशाल्लाह इनको घर में घुस के मारा है। अगर नौशहरा से पीएमएलएन जब कभी नहीं जीती, नौशहरा से जीत सकती है। अब आप बेशक अपनी शर्मिंदगी और खिफत मिटाने के लिए कहें कि जी वहाँ हमारी पार्टी की आपस की लड़ाइयाँ थी, वहाँ ये था, वहाँ वो था, वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ अवाम ने एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। अब आप अपनी जैसे मर्जी अपनी शर्मिंदगी खिफत छुपाएं, उससे असल बात नहीं छुपती। और दूसरी बात ये कि मैं आखिर में ये भी कह देना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये लोकल सतह की धांधली हुई थी, इसमें लोकल पीटीआई इन्वॉल्व है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, तो ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं, और वो हाईएस्ट ऑफिस से जिस पे इमरान खान कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहते हैं, वहां से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। तो मैं ये अच्छी तरह जानती हूं कि वो नाम मेरे पास आ चुके हैं। मैं सिर्फ ये इंतजार कर रही हूं कि ईसीपी के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आए, और मैं ये इंतजार कर रही हूं कि ये खुद सच बता दें और मजीद शर्मिंदगी से बच जाएं, वरना वो हकाइक मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे कि किस तरह वो 20 में से चंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी रात गाड़ियों में घुमाया गया और उनसे नताइज तब्दील कराए गए, और किस तरह बाकी को एक डेरे पर ले जाकर वहाँ पीटीआई का कौन कौन सा रुकन मौजूद था, वहाँ किस किस एजेंसी का कौन सा रुकन मौजूद था, मैं अच्छी से जानती हूँ। तो वो अगर ये चीज एक्सपोज न की तो ये मैं कर दूंगी। बस आखिरी सवाल प्लीज। इमरान खान कब घर ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं बात नहीं जा रही। शुक्रिया। इमरान खान कब जा रहे हैं? अगली डेडलाइन बता दे। सेनेट इलेक्शन है, देखो मेरी बात, मैं तो तारीखें नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि उनकी जो हरकतें हैं, उनका जो घबराना है, उनके जो हवास बाख्तापन का सबूत है। देखो इतने नाअहल और इतने नालायक हैं और इतने घबराए हुए हैं कि धांधली भी सही तरीके से नहीं कर सके, उसमें भी सबूतों का एक अंबार छोड़ गए हैं। तो ये जो इनकी घबराहट है, जो इनकी हरकत और सकनात हैं, जिस तरह इनके सांस हाथ पांव फूले हुए हैं, उससे तो मुझे ये नजर आ रहा है कि हमसे पहले उनको पता है कि वो कब जा रहे हैं। शुक्रिया। मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनकी जानिब से कहा गया हमें 20 पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग नहीं करवानी है, हमें पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन चाहिए। मजीद उनकी जानिब से कहा गया है हमजा शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरह हमजा के साथ जुल्म किया गया, 1 रुपये की करप्शन साबित नहीं हुई है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया है।